कल बाकी दोनों और जगह के लिंक आ रहे हैं, मतलब तो लाइव है। हाँ जी, ये एक आ गए मोहम्मद जुबैर इलियास साहब। मैकेनिकल वाला भी दोनों पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सजाद अहमद और जुबैर इलियास जो है ना हमारा। सर आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर आ रही है। A very warm welcome. Good morning and assalamu alaikum to one and all. My name is Nirmala Mahmood and I am very privileged to partly welcome all of you here in this at first ever international conference of business, economics, finance, social sciences and technology 2022. Respected scholars, this year meeting will provide you a glorious opportunity to share your knowledge and insights and also provide an amazing opportunity to make some measures with fellow attendees. I wish each of you a pleasant and good stay during your time here in the city. Let's start the session with the name of Allah Almighty, the most merciful, the most beneficent. As we are about to begin, I have several announcements. First, I would like to seek your cooperation in completing this session. Please turn your mobile phones to silent mode to avoid any interruption. Every participant has 10 minutes to present and 5 minutes for question and answer session. Before the session begins, allow me to introduce you to our respective panel members that are with us, Dr. Nayera K. and Dr. Shweb. Dr. Shweb. Let's start the session, but first, respected sir, I need your permission to start the presentation. May I start, sir? Thank you, sir. Without any further delay, I would like to welcome our first speaker of today's session to deliver the presentation. I would like to welcome our first today's session to deliver the presentation, Dr. Muhammad Zubair Ilyas. Will you join us on time? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sajad Ahmad and my co-member is Zubair Ilyas. I am student of MS third semester. My research paper is Solution of the Problem of Solid Waste Management in Rahim Yar Khan, How it could be managed. इस पे हमने डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से हमने ये बनाया था। इसमें हम प्रेजेंट ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो है ना डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आ रही है। स्क्रीन शेयर कर देना। जो स्लाइड है आप अपनी तरफ से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। डिसेबल आ रहा है और होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। जी सर। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग का एरर आ रहा है यहाँ पे। जी सर, अब देखें। जी सर, श्योर है सर। सर ये टॉपिक हमारे पास था सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन रहीम यार खान, हाउ इट कुड बी डन एंड मैनेज।
एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास था म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये मेन हमारा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये जो प्रॉब्लम है, इस इश्यूज़ को हमने हाईलाइट किया है और इस पर काम किया है। तो इसमें मेन फोकस हमारा डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान में जो वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से था वो था। यूटिलाइजेशन ऑफ बायर थिंग्स इंक्रीज यू। आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हुई अभी? नहीं सर, जी सर। अब हो गई सर? नहीं सर, ब्लैक आ रहा है हमारे पास, स्क्रीन आपकी शो नहीं है। दोबारा उसको करें। हाँ अब आ गया सर, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में मेजर इश्यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज, utilization of biothings increase due to fast growing population and economic developing, which causes to increase in municipal waste. Pressure on local governments to build a reasonable waste management system. Aim of this study is to give feasible solution solid waste management challenges in Rahimyar Khan. Productive changes to waste management requires an understanding of local context and consideration of the specific issues within a locality. Waste management in rural areas and urban areas needs to be addressed in different ways. इसमें सारा because we are working in other department of local government, so we choose this topic. डे टू डे एक्टिविटी हमारे पास हो रही थी और फाइनेंशियल जो है ना हम उसका काम कर रहे थे, इसलिए हमने ये टॉपिक चूज़ किया और इसको हमने स्टडी भी किया और इस पर थोड़ी सी वो रिसर्च भी की है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा जो मेन था, इसमें जो प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है सर। सॉल्यूशन फॉर दिस वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड इसमें है डेवलपमेंट ऑफ सूटेबल पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल बाय सेटिंग अप अ वेस्ट डिवीजन फ्रेमवर्क, commencement of assortment service that support a waste separation of sources, giving awareness to the residents of the locality and the local government staff, look up for outer help from the religious one। इसमें मेन ये था सर कि जो वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो है हमने मुख्तलिफ उसमें ये है कि जो इदारा जो काम कर रहे हैं जिसमें सॉलिड वेस्ट के स्टाफ वगैरह है उसके हवाले से भी है जो इसमें सॉल्यूशन है, और फाइनेंशियल भी हैं इसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड वगैरह की ज़रूरत होती है वो, उसके अलावा जो है ना यानी कि अवेयरनेस कैंपेन वगैरह के थ्रू जो है ना आवाम को भी बताया जाए कि वो किस तरह जो ये वेस्ट मैनेजमेंट है इसमें वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जो पैटर्न ऑफ जो है ना लाइफ है लोगों का वो ऐसे कागज़ वगैरह जो भी यूज़ कर रहे होते हैं वैसे फेंक देते हैं, तो वो अवेयरनेस कैंपेन की जाती हैं जिससे लोग जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना डिस्पोज ऑफ करें और इससे हेल्प होती है उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। इंट्रोडक्शन में सर यह है कि वेस्ट मैनेजमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी एड्रेस इन डिफरेंट वे। इसमें यह है कि अर्बन और रूरल एरियाज के हवाले से मुख्तलिफ हैं कि अर्बन के और वेस्ट मैनेजमेंट के, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आबादी होती है, ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं बनिस्तर रूरल एरियाज। रैपिडली इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर काजेज इंक्रीज इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें सर जैसे जैसे आबादी इंक्रीज कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ का इशू आ रहा है और चेंजेस जिस तरह बिहेवियर लोगों के चेंज हो रहे हैं कंज्यूमर के हवाले से, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट में भी उसी तरह से वेस्ट बढ़ता है, यानी कि ज़्यादा आबादी होगी, ज़्यादा लोग यूज करेंगे प्रोडक्शन में, यानी कि जो चीज़ें यूज कंज्यूम करते हैं तो वो ज़्यादा वो कंज्यूम करने के बाद वो वेस्ट भी इस तरह ज़्यादा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए। मेजर प्रॉब्लम इन लार्ज सिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज और लोकल वेस्ट जनरेटेड बाय हाउसहोल्ड, कमर्शियल एंड गवर्नमेंटल एंटरप्राइज म्यूनसिपल सॉलिड। इसमें सारा लोकल वेस्ट में होता है, हाउस होल्ड यानी घरों वगैरह में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके बाद वेस्ट आता है, कमर्शियल हो गया, और इसके अलावा गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं वो भी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कर रहे थे, उनको भी वो मैनेज के लिए भी इसमें मुख्तलिफ वो किए गए हैं। पैकेजेस, मटेरियल, फूड वेस्ट, ग्रास ट्रिमिंग, क्लॉथिंग, पेपर एंड अदर सॉलिड फॉर्म ऑफ वेस्ट। In developing countries, municipal solid waste management consume only 25 to 50% बजट जो है लोकल गवर्नमेंट्स का साथ इसमें यूज हो जाता है सॉलिड वेस्ट में मैनेजमेंट में, एज मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नॉट एक्सेस टू सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सर्विस।
इसमें जो ये प्रॉब्लम है सर कि 20 to 50% जो है वो बजट यूज़ हो जाता है गवर्नमेंट का इस सेक्टर पे, इस काम पे, और 50% जो पॉपुलेशन है उनको ये एक्सेस ही नहीं है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे हो ही नहीं रही, यानी कलेक्शन नहीं हो रही, कुछ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। तो ये मेन इसमें इशू है सर। एज पर वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 40 to 70% डिस्कार्डेड मटेरियल रिमेन अनकलेक्टेड इन द अर्बन एरिया। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसके हवाले से 40 to 70% कलेक्शन ही नहीं होती वेस्ट मैनेजमेंट की, जो वेस्ट है वो पड़ा रहता है। इन रहीम यार खान daily generation of solid waste is destined to accelerate to about 287.49 tons per day and annually by 2023 using 0.457 kg of per capita per day and then to about 495.77 ton daily बाई 2000। इसमें यानी इंक्रीज का वो रेशो बता रहे हैं इसमें एज पर गवर्नमेंट फिगर, जो गवर्नमेंट ने फिगर दिए हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे और पर ईयर जो है इसमें इंक्रीज आ रहे हैं। एज पर गवर्नमेंट फिगर कोटेड बाई पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी है जिसने ये सर्वे किया था, उसके फिगर दिए हैं। ये सर को मेंबर है सर जुबैर इलियास साहब सर मेरे साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। आगे सर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। इसमें हमारे इंट्रोडक्शन में ये चल रहा है कि हमारे पास जो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस लीड्स टू ओपन बर्निंग। अब यहाँ पे रहीम यार खान के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है हमारे पास प्रॉपर मशीनरी नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है, जो भी है जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है रहीम यार खान में, वो क्या होता है कि उसको या तो ओपन जगहों में फेंक दिया जाता है, या अगर उनको कहीं जगह पे Recording in progress. या उसको अगर हम ओपन जगहों पे नहीं फेंकते या हम डंपिंग साइट पे फेंक देते हैं तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि उसको जला दिया जाता है। जलाने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो एयर पोल्यूशन है उसमें भी इजाफा होता है, उसके साथ उसकी स्मेल जो होती है वो इर्द गिर्द फैल जाती है, इर्द गिर्द के जो लोग रिहायशी हैं वहाँ पे उनको वो डिस्टर्ब करती है। दूसरा इसमें आया था कि अर्बनाइजेशन हैज़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज कंजम्पशन। अब यहाँ पे देखें कि हमारे जो सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ से वो शिफ्ट हो रहे हैं गांव से, क्योंकि वहाँ पे उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। तो जब वो ऑटो वहाँ से गांव से शिफ्ट होंगे शहर में, जैसे कि रहीम यार खान के इर्द गिर्द के इलाकों से शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे वो क्या होता है कि लोगों की कंजम्पशन, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो भी हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। और इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो है वो सॉलिड वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें भी इजाफा हो जाएगा, जो कि हमारे लोकल गवर्नमेंट जो उसको कलेक्शन करते हैं, जो उसको प्रॉपरली कलेक्शन, अब उनके पास इतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो उनके लिए वो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जो है द म्यूनसिपल कमेटी रहीम सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो यहाँ पे हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि म्यूनसिपल कमेटी है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है रहीम यार खान में, उसके पास सिर्फ ये सॉलिड वेस्ट का वो फंक्शन नहीं है। जिस तरह कि हम देख लेते हैं कि लाहौर में है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके पास सिर्फ सॉलिड वेस्ट का ही वो फील्ड है, वहीं पे उन्होंने सॉलिड वेस्ट के साथ ही डील करना है। इस तरह भावलपुर में देख लें, भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन हमारी जो रहीम यार खान में है, यहाँ पे हमें सॉलिड वेस्ट के साथ साथ और किस्म के फंक्शन जो हैं वो हमारे जो उसमें रूल्स में हैं वो भी हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसमें कौन कौन से हैं कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो है लोगों को पहुंचाना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रोविजन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स हैं रोड पे स्ट्रीट्स में, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। उसके बाद में हमारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनके मैप्स वगैरह अप्रूव होते हैं, उनको रेगुलराइजेशन करनी है, वो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी में आ जाता है। सैनिटेशन सर्विसेज जिस तरह सेवरेज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स एज वेल एज, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स में क्या आता है, हमारी डेथ रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन, मैरिजेज हैं, डाइवोर्स वगैरह, उस तरह की रजिस्ट्रेशन वो भी हमारा डिपार्टमेंट ही परफॉर्म करता है वो फंक्शन। इस वजह से इसके अलावा अगर कोई भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में जो है अगर एमरजेंसी किस्म की नोयत पैदा हो जाती है, जिस तरह हम फ्लड सीजन में आ जाते हैं या मूनसून का सीजन आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको फ्रंट फुट पे वो जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। तो इस वजह से वो जो है हम इसको प्रॉपरली जो है सॉलिड वेस्ट की तरफ प्रॉपर जो है वो अटेंशन नहीं दे सकते। अब इसमें हमें हमारे जो है साथ कोलैबोरेशन है PMBFC की, जो हमें वो सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी वेबसाइट से हमने ये डाटा लिया है। तो उसमें उन्होंने वो जो किया था कि हमारे पास 3 किस्म की कलेक्शन होती है सॉलिड वेस्ट की। एक प्राइमरी सॉलिड वेस्ट कलेक्शन है, एक सेकेंडरी सॉलिड वेस्ट कलेक्शन है और एक फाइनल कलेक्शन है।
तो प्राइमरी सॉलिड वेस्ट कलेक्शन में क्या होता है कि जो हमारे जो हैं जो स्वीपर्स वगैरह हैं जो झाड़ू वगैरह के साथ या जो रोड पे वो स्वीपिंग करते हैं झाड़ू लगाते हैं तो वो उसको वहाँ से कलेक्शन करते हैं, उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। उसको इकट्ठा करने के बाद वो जो है वो उसको रेडीज हैंड कार्ड की मदद से वो उसको शिफ्ट कर देते हैं किसी एक पॉइंट पे, जहाँ से फिर आगे म्यूनसिपल के कारपोरेशन का जो स्टाफ है उसको वो ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से उठा के उसको नेक्स्ट आगे कहीं पे जहाँ पे डंपिंग साइड है वहाँ पे उसको शिफ्ट कर देता है। तो इसमें ये हमारे पास ये नीचे टेबल दिया हुआ है कि हमारे पास जो इंडिकेटर है रेंजर का डिस्ट्रिक्ट में या रेंजर का सिटी में वो है कि हमारी जो है डोर टू डोर सर्विसेज हैं वो एग्जिस्टिंग कंडीशन में नन है, यानी कि हम डोर टू डोर जो है जो लोगों से जो घरों से सॉलिड वेस्ट कलेक्ट नहीं करते। तो ये हमारे पास गैप है 100% कि हम इसको ये करना चाहिए, लेकिन ये हम नहीं कर रहे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ और लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद सेकंड पे है हमारी प्राइमरी सॉलिड वेस्ट कवरेज ईच डे इन लोकेलिटीज जो है वो हमारी 70% फुली सर्व्ड है, 20% पार्शली सर्व्ड एंड 10% नॉट। यानी कि जो हमारे लोग घरों में या इलाकों में झाड़ू के लिए जाते हैं, स्वीपिंग के लिए जाते हैं, वो सिर्फ 70% एरिया जो है वहाँ पे वो डेली जो है वो उसको कवर करते हैं। जो 20% है उसको पार्शली वो यानी कि थोड़ी सी करते हैं, थोड़ी कुछ दिनों बाद जाते हैं। 10% पे वो जो उसको उनके एक्सेस में नहीं है वो नहीं जाते। अवेलेबल उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें 43 हैंड कार्ड्स हैं जो कि होनी चाहिए, मिनिमम 350 हैंड कार्ड्स होनी चाहिए ताकि उसको वो प्रॉपरली मैनेज कर सकें। सॉलिड वेस्ट कवरेज जो 80% है, हमारी जो रोड्स हैं वो मैनुअली स्वेप्ट होती हैं, जबकि आप देख लें कि हमारी जो इंटरनेशनल या जो फॉरनर्स हैं या हमारी जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने मैकेनिकल या मशीनरीज वगैरह जो अटैच की होती है जिसकी वजह से वो रोड्स वगैरह की वो क्लियर करते हैं। जिस तरह मैकेनिकल स्वीपर्स होते हैं वो उनको यूज़ करते हैं, वो रोड की क्लियरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इसको ये जो है वो स्टाफ के थ्रू करना पड़ता है जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग भी है। करंटली जो हमारे पास है 508 सैनिटरी वर्कर्स हैं, लेकिन जो कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। जो कि हमने इसका स्टैंडर्ड लिया था, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वालों ने ये कहा था कि हमारे जो 800 कंज्यूमर के लिए हमारा कम अज़ कम मिनिमम जो है एक सैनिटरी वर्कर होना चाहिए, तो हम इसको प्रॉपरली फिर इसको मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडरी कलेक्शन में क्या होता है, सेकेंडरी कलेक्शन में हमारे पास जो है यहाँ पे 11 ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं म्यूनसिपल कारपोरेशन रहीमगढ़ में, 4 लोडर्स हैं, 10 ओपन स्टील कंटेनर हैं जो कि इनसफिशिएंट है रही इसकी आबादी के हिसाब से। तो इसका रीज़न क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे सॉलिड वेस्ट के वो ढेर लगे हुए होते हैं, उसको प्रॉपरली उनको वो पिकअप नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो क्या होता है इसकी वजह से वो हमारी होती है जो कलेक्शन होती है वो वीकली बेसिस पे होती है, क्योंकि मशीनरी और स्टाफ की शॉर्टेज है, तो वो पूरे दिन में वो तमाम एरिया को कवर नहीं कर सकते। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है हमारी यहाँ पर 48% है जो कि बहुत ही कम है, जिसको 100% या मिनिमम 90 to 95% होना चाहिए। इसके अलावा जो होते हैं जो वेस्ट जो होती है डेब्रिस डेमोलिशन, जो लोग घरों को वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर तोड़ते हैं वगैरह उसको डिमोलिश करते हैं, उसका वेस्ट भी पड़ा रहता है, वो उसको जहमत नहीं करते कि वो उठा के कहीं साइड पे या किसी जगह पे उसको शिफ्ट कर दें। हॉस्पिटल का वेस्ट भी होता है, स्लाटर हाउसेज वेस्ट हैं, उसके बाद वेजिटेबल मार्केट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, तो वो सारे जो है वो इस वेस्ट में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो हमारे ऊपर कारपोरेशन के ऊपर लोकल गवर्नमेंट पर बर्डन मजीद बढ़ जाता है कि वो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। ये सेकेंडरी डाटा कलेक्शन की हमारे पास रिपोर्ट है कि हमारे पास जो कलेक्शन एफिशिएंसी है 48% है, तो हमारे पास 52% का गैप है जिसको अगर हमको 100% पे लेके जाते हैं। सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट में हमारे पास 6 ओपन हीप्स हैं, 13 ओपन स्टील कंटेनर्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें 20 मजीद मिनिमम चाहिए, 8 ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं और उसके बाद हमें जो है वो कंटेनर ट्रक भी चाहिए, डंपर ट्रक है। तो ये हमारा डाटा जो हमने वहाँ से कलेक्ट किया है, तो इसको हम मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइनल डिस्पोजल में हमारे पास होता है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज मेनली डन इन द फॉर्म ऑफ ओपन डंपिंग शिफ्टिंग टू सॉलिड वेस्ट एट परमानेंट एंड टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट। यानी कि फाइनल डिस्पोजल में ये होता है कि जो हमारे स्वीपर्स ने वो जो है सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया होता है उसको हीप्स की शक्ल में रख देते हैं, वहाँ से जो हमारे वो जो है ट्रैक्टर ट्रॉलीज की मदद से हम उसको शिफ्ट करते हैं और ओपन डंपिंग साइड पे वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ओपन डंपिंग साइड पे हमारे पास उसको शिफ्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसके जो सोर्सेज नहीं है, फंडिंग नहीं है, स्टाफ की भी कमी है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो क्या हो रही हैं कि हमारे पास ये टोटली जो है अनहाइजीनिक कंडीशंस पैदा होती हैं जो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं। उसके बाद है हमारे जो इन्वायरमेंट में वो आलूदगी या पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, उसके स्मेल जो वहाँ पे इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं वहाँ को उनकी जो स्मेल जो है वो डिस्टर्ब करती है। और उसके अलावा जो है हमारे वहाँ पे जो कूड़ा करकट वहाँ पे अवेलेबल होता है, वहाँ पे मच्छरों और मक्खियों का जो होता है, जिस वजह से हमारी जो सोसाइटी में बीमारियाँ वगैरह भी वो हैं इंक्रीज हो रही हैं।
तो फाइनल डिस्पोजल में क्या हो सकता है कि उसको हम उसको कंपोस्टिंग फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल, जो हमारे जो कचरा है जो हमारा, जिसको हम वेजिटेबल वेस्ट कह सकते हैं, उसको कंपोस्ट किया जाए। रीजनल बेस्ड इंडिकेटर्स आर रीजनल लैंड फिलिंग पॉइंट्स, क्या कि हम उसको जो लैंड फिल पॉइंट्स हैं उसको हम एक सेपरेट जगह पे उसको मैनेज करें कि वहाँ पे उसको किस तरह से उसको डंप किया जाना चाहिए। उसके बाद मटीरियल और मेथड जो है वो इसमें किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो मेथड जो यूज़ किया था वो है इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, जिसकी वजह से अगर हम इसकी कुछ ना कुछ पॉइंट्स को अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास जो है वहाँ पे उसको कुछ हद तक हम उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट्स है इसके इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट थ्योरी के, जिसमें हमारे पास है पार्टिसिपेंट अफेक्टेड बाय और इन्वॉल्व इन वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ के जो लोकेलिटीज के लोग हैं वो जो उससे इफेक्ट हो रहे हैं और जो उसको मैनेज कर रहे हैं, यानी कि स्टाफ लोकल गवर्नमेंट का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी का स्टाफ जो कि उसको मैनेज कर रहा है। तो ये इसके हैं वो जो पार्टिसिपेंट हैं इसमें मेन कंपोनेंट फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है फिजिकल और प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि फिजिकल जो प्रैक्टिकल जो हमारे पास मशीनरी है, फंडिंग वगैरह है, तो किस तरह से मैनेज करना है, तो वो हमारे उसके फिजिकल और प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद है एरिया ऑफ एस्पेक्ट्स दैट डायरेक्टली इफेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट, यानी कि जो हमारे पास पॉलिटिकली हम उसको किस तरह से देख सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट यानी कि सोशली हम लोगों को अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस के जरिए भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया हमारा आजकल इतना स्ट्रॉन्ग है उसके जरिए से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा इसमें ये 3 मेन जो इसमें वो है इसके ये उसकी जो है वो हमारी फिगर है कि इसमें क्या है इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। इसमें हमारे पास स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं कि लोकल अथॉरिटीज़ हैं, NGOs हैं, सर्विस यूजर्स हैं, प्राइवेट इनफॉर्मल सेक्टर्स, प्राइवेट फॉर्मल सेक्टर्स हैं और डोनर एजेंसीज हैं, ये आ गए। उसके बाद हमारे सेकंड नंबर पे आ जाते हैं वेस्ट सिस्टम एलिमेंट्स आ जाती हैं। इसमें आ जाती है हमारी कि हमने जो वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है इसको हमने कैसे मैनेज करना है और किस तरह से इसको करना है। तो इसमें फर्स्ट पे आ जाता है जनरेशन एंड सेपरेशन है कि जो हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हमने सेपरेट कर दें, तो यानी कि जो हमारा उसमें रिसाइकलेबल है, यूजेबल है, उसको हम यूज़ कर लें और बाकी जो हमारा यूजेबल नहीं है हम उसको वो उसका प्रॉपरली उसको डंप करें या उसको मैनेज करें। उसके बाद उसकी कलेक्शन आ जाती है, फिर कलेक्शन के बाद ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट आ जाती है उस वेस्ट की, ट्रीटमेंट डिस्पोजल है, रिडक्शन है, रीयूज है, रिसाइकलिंग, रिकवरी, तो ये हमारा था इसमें आ जाते हैं। अब थर्ड जो कंपोनेंट था वो हमारा था एस्पेक्ट्स था, उसमें टेक्निकल इन्वायरमेंटल हेल्थ, टेक्निकल जो है प्रॉब्लम्स वो आ जाती हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल और हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सोशियो कल्चर जो है वो हमारा कल्चर वहाँ पे किस तरह के लोग हैं उनका रहन सहन क्या है वो आ जाता है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, लीगल, पॉलिटिकल, तो ये हमारी चीज़ें जो हम इसको इस पूरे सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। इसमें हमारा जो था डाटा कलेक्शन था वो हमने किस तरह से किया था कि हमने, क्योंकि हम बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ से यहीं हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारा ये कलेक्शन जो थी डाटा हमारे लिए बहुत इजी था। हमने क्या किया, साइट विजिट्स की डिफरेंट जहाँ पे वो गलियों में, सड़कों पे, उसके बाद देखा और जहाँ पे इनकी ओपन डंपिंग साइट है वहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन देखी, सेकेंडरी डाटा को एनालाइज किया। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर 1-to-1 इंटरव्यूज भी, फोकस ग्रुप यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ग्रुप, उनसे भी इंटरव्यूज लिए, उनसे कमेंट्स वगैरह लिए। उसके बाद पर्पज सैम्पलिंग की। उसमें पर्पज सैम्पलिंग में क्या होता है कि रिसर्चर जो होते हैं वो रिलाई ऑन देयर ऑन जजमेंट के ऊपर, यानी कि उनसे वो ओपिनियन तो लेते हैं लेकिन वो फिर अपनी जजमेंट के बिहाफ पे वो फिर अपनी जो है वो सैम्पलिंग वो उसको करते हैं। उसके बाद हमने स्नोबॉल सैम्पलिंग भी की, जो कि सैम्पलिंग मेथड यूज व्हेन कैरेक्टरिस्टिक टू बी पोजेस्ड बाय सैंपल्स आर रेयर, यानी कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत रेयर हैं और उनको बहुत डिफिकल्टी से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या था कि हमने जब विजिट किया डिफरेंट साइट्स को देखा, हमने वहाँ पे चेक किया, तो हमारे क्या था, पोल्यूशन फ्रॉम ओपन डंपिंग इज वाइड स्प्रेड एंड कॉमन ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारी डंपिंग साइट्स थी सॉलिड वेस्ट की, वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोगों ने जो होते हैं वहाँ के स्मेल से वो छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ पे आग लगा देते हैं। आग लगाने की वजह से क्या होता था कि वहाँ पे वो उससे धुआं निकलता है, धुएं की वजह से, स्मोक की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है जो वो खराब हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। उसके बाद पीपल डिस्पोज ऑफ देयर वेस्ट ऑन टू रोड साइड, जो लोग हैं जब उनके घरों से डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होती तो वो क्या करते हैं कि वो जो उनका घर का कचरा है वो उसको शॉपिंग बैग में या किसी चीज़ में डाल के बाहर रोड पे जहाँ उनको नज़र आता है वहाँ पे वो फेंक देते हैं। फेंकने की वजह से अगर तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग जो हैं वो उसको वहाँ से पिकअप कर लें तो ठीक, वेल एंड गुड, फिर वो उसको डंपिंग साइट पे ले जाते हैं। अगर वहाँ पे पड़ा है तो शॉपिंग बैग जो है वो फट जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से उसमें जो कचरा होता है वो यहाँ पे हवाओं की वजह से या इसकी वजह से वहाँ पे फैल जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे टेम्परेरी वेस्ट डिस्पोजल साइट्स आर हाइडियस एंड जनरेट स्ट्रॉन्ग ओडर, यानी कि जो टेम्परेरी उनके
वो जो है डंपिंग पॉइंट्स है वहाँ पे जो कचरा पड़ा रहता है जहाँ वहाँ से उठा लिया जाता है वो प्रॉपरली पूरा कंप्लीट वहाँ से पिकअप नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्मेल होती है वो वहाँ के जो करीब के लोग होते हैं उनको वो जो स्ट्रॉन्ग किस्म की जो स्मेल होती है वो उनके लिए बहुत नागवार हो जाती है उस चीज़। उसके बाद है हमारे जो पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्सेज जो हमने लिए थे उसमें क्या था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज ए प्रॉब्लम इन रहीम खान, यानी कि जो लोगों से हमने वो जो पता किया तो उन्होंने कहा कि ये सॉलिड वेस्ट वाकई ही जो रहीम खान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है और प्रॉब्लम है। अगर इसको हमने अच्छी तरह से एड्रेस नहीं किया तो ये दिन ब दिन हमारे रहीम खान के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की सूरत इख्तियार कर लेगी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हैड ए वेरी विटल इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड ऑफ रिस्पोंडेंट्स टू वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो लोग हैं वहाँ पे जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वहाँ का वो बहुत ज़्यादा कम इम्पैक्ट करता है इन लोगों के जो एटीट्यूड के ऊपर टुवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, यानी कि अगर हम उसको अवेयरनेस क्रिएट करें तो वो बहुत कम उसको बॉदर करते हैं कि हाँ जी हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें इसको प्रॉपरली जो उसको मैनेज करना चाहिए। इनइफेक्टिव कलेक्शन प्रोसेस लीड टू वेस्ट अकामुलेशन, यानी कि जब आपका कचरा प्रोड्यूस हो रहा है डेली डे टू डे, अगर आप उसको डे टू डे वहाँ से कलेक्शन नहीं कर रहे तो जो आपका कचरा वहाँ पे या सॉलिड वेस्ट वहाँ पे पड़ा रहेगा वो आपका वो कलेक्शन वहाँ पे होती रहेगी और वो आपका क्या है डे टू डे इंक्रीज करता रहेगा। इंक्रीज करने की वजह से आपका वो आपको कलेक्शन में उसकी जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी, आप उसको इनएफिशिएंटली जो है वो या एफिशिएंटली आपको वहाँ से कलेक्ट नहीं कर सकते। आगे हमारी इसी रिसर्च की बेस पे हमने रिकमेंडेशन की थी, जो देखा था हमने इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आया कि फुली कंट्रोल 100% कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर इसमें थोड़ी सी इसमें माइनर सी चेंजेस कर सकें तो हमारा कुछ ना कुछ मजीद बेहतरी हो सकती है। तो उसमें हमारा पहला जो है टेक्निकल सोल्यूशन है कि कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट के हमें जो सॉलिड वेस्ट है जो उसको कलेक्शन किस तरह से कलेक्ट करना है और उसको ट्रांसपोर्टेशन इन ए प्रोटेक्टिव वे किस तरह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है ताकि लोगों को कम से कम उसका जो है वो नुकसान पहुंचे। वेस्ट रिडक्शन मेथड है कि हम जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं ताकि जो हमारी लैंडफिल साइट्स हैं वहाँ पे हमारा जो वेस्ट है कम से कम पहुंचे और हमें जो उसको वो इजीली उसको वो हम उसको कलेक्ट या उसको वो कर सकें डिस्पर्स कर सकें। आप सुन रहे हैं हमें? जी 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 You have to finish your presentation within 15 minutes. It's already like 10 minutes have passed, so you have to finish. ओके it within आई 5 मैं कंटिन्यू जल्दी से ठीक है। तो उसके बाद हमारा कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट है कि हमारी जो मशीनरी है उसको हमें इस तरह से प्रोवाइड किया जाए ताकि जो हमारा जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम इजीली जो है वो वहाँ से कलेक्ट करने के बाद हम उसको वहाँ पे जो है डंपिंग साइट उसको प्रोवाइड कर सकें, वो सेंड कर सकें। ये हमारी जो है उसकी एक अप्रोच है जो इसमें बताया हुआ कि किस तरह से हम उसको वो कर सकते हैं। वेस्ट सेपरेशन किस तरह से हो सकती है, उसमें हमारा जो है वो वेस्ट जो हैं वेजिटेबल वेस्ट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, दोबारा हम अपने वो जानवर वगैरह जो हैं वो जानवरों को दे सकते हैं, खिला सकते हैं। उसके बाद जो हमारा रिसाइकल प्लास्टिक वगैरह है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये सारा इसमें वो सारा उसमें बयान किया हुआ है। सेगमेंट के वेस्ट रिडक्शन मेथड में हमारा वही सेम आ जाता है, शॉर्टमेंट करें हम उसकी कि जो हमारा वेस्ट यूजेबल है उसको हम यूज़ कर लें, यानी कि जानवरों वगैरह का जिसमें सब चारा है उसके तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या हम उसकी कंपोस्ट वगैरह कर सकते हैं, उसको डंप करके उसको फर्टिलाइजर की शेप में हम उसको बना लें तो उसके बाद हमारा जो वेस्ट रिडक्शन मेथड में कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर हमारे पास हमें इसके लिए एडिकेट फंडिंग की ज़रूरत है क्योंकि बजट के बगैर हमारा जो कोई भी वो वर्किंग जो है वो काम पॉलिसी वगैरह वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो सूटेबल बजट अगर अवेलेबल होगा तो ही ये इसको आगे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसमें आगे है कि हमारी जो लोगों में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी है कि लोग जो है जिस तरह गलियों में कचरा वगैरह या सॉलिड वेस्ट फेंक देते हैं वो उसको ना फेंके, उसको प्रॉपरली पैक करके जहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट का स्टाफ अवेलेबल है उन्हें उनको पॉइंट आउट किया हुआ है वहाँ पे उसको फेंकें ताकि उनको कलेक्शन में ईजीली उसको कलेक्ट करके वो जो प्रॉपर डंपिंग साइट है वहाँ पे उसको पहुँचा सकें। उसके बाद उन्हें हम उनको फाइनेंशियल रिवार्ड भी दे सकते हैं कि अगर आप इसको उसमें सॉलिड ग्रीन वेजिटेबल वेस्ट वगैरह और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेपरेट करें तो हम उसको जिस तरह स्टेट के बाहर को मालूम होता है कि वो उनको वो सर्टन अमाउंट पे करते हैं कि अगर आपका ये ग्रीन वेस्ट है तो इसको आप सेपरेट रखें, हम आपको इस अमाउंट पे आपसे परचेज करेंगे जिसको हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान ये है कि स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान। कैन यू प्लीज स्टॉप नाउ? ओके सर, बस सर ये लास्ट टाइम थी सर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you so much. Now I would like to call Dr. Asman Faiz for the corporate question and answer.
Okay, sir. We will proceed for question of session. Our judges would like to ask some questions to you. ओके सो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है टीचर एक्चुअली इन माय opinion that is not actually a research paper but just give some recommendations for the risk management